اور یہی اکھلیش یادو صحیفائی میں بیٹھ کر کے ننگا ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی۔ میں آپ کیا بی جے پی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آج آر ایس ایس، بجرنگ دل، سنگھ پریوار، وشو ہندو پریشد، یہ سارے کے سارے ہر محکمے میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ چاہے پولیس محکمہ ہو جائے، وہ چاہے عدلیہ کا محکمہ ہو جائے، وہ چاہے بیوروکریٹ ہو جائے، وہ چاہے جو محکمہ ہو جائے، ہر جگہ آر ایس ایس اور بجرنگ دل سنگھ پریوار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کیا عدلیہ سے آپ کو انصاف ملنے کی امید ہے؟ بتاؤ کیا پولیس سے انصاف ملنے کی امید ہے؟ بتاؤ کیا میڈیا پارشلٹی نہیں دکھاتی مسلمانوں کے ساتھ؟ ایک مسلمان پکڑا جاتا ہے تو یہی میڈیا کے لوگ اس کو ڈیبیٹ میں آتنکوادی ثابت کر دیتے ہیں اور بولتے چلتے گھر کو دیکھنے والوں، بھوت کا چپر آپ کا ہے، آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، باقی مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ کر، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ آج ہم ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے مولانا ملا ووٹ دیتے ہیں، اور جب ظلم ہوتا ہے تو مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مدد کرتے، اللہ مدد کرتے۔ ارے اللہ سے ریاکاری، تم ہی نے ظالموں کو مضبوط کیا، تم ہی نے ظالموں کے کندھوں میں قوت بخشی، اور اب تم اللہ سے گڑ گڑا رہے ہو۔ اب اللہ سے گڑ گڑاؤ گے، اب اللہ سے مدد مانگو گے، طاقت ظالم کو بخشو گے، مدد اللہ سے مانگو گے۔ اللہ جب پہلی جن سبھا ہمارے صدر محترم حاجی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی لگائی گئی، تب بھی اس منچ پہ میں موجود تھا، اور آج اپنے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر منان صاحب کے کہنے پہ میں پھر اپنے لو لشکر کے ساتھ ٹانڈا ویدھان سبھا سے چل کر کے یہاں آیا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2017 چناؤ میں نے ٹانڈا ویدھان سبھا سے لڑا تھا، اور 2015 میں نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم پکڑا۔ دوستو، آج ہندوستان کے حالات، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی، جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے، آپ کے درمیان آئیں گے ہمارے صدر بیرسٹر حاجی اسد الدین اویسی صاحب، تو اسی لیے پیشنس سے کام لیں، دھیر سے کام لیں، تھوڑا صبر اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ہی سے مخاطب ہونے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ میں چند باتیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ان باتوں پہ اس لیے آپ غور کریے کیونکہ ملک کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ آپ ہم کو مسلمانوں کو کہیں گاؤ پروٹیکشن کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں لفظ جہاد کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں داڑھی ٹوپی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، اور جب ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں تو جھوٹے چوری کے الزام میں پیٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ دوستو، جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک میں صرف دو ہی پارٹیاں ہوا کرتی تھی، ایک کانگریس آئی اور دوسری مسلم لیگ۔ میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں، 74 سال پیچھے اس لیے لے جا رہا ہوں کہ یہ دو پارٹیاں، جو مسلمانوں کی ایک پارٹی اس میں ہوتی تھی مسلم لیگ، اور ایک کانگریس آئی، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو کبھی اپنی پارٹی نہیں مانی، مسلم لیگ کے قائدینوں کو کبھی اپنا قائد نہیں مانا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ کانگریس کو اپنی پارٹی اور کانگریس کے قائدینوں کو اپنا قائد مانا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی گنگا جمنے کے پہلا ادھارن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں نے کبھی کسی مسلم پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی مسلم لیڈر کو اپنا قائد نہیں مانا، لیکن ملک کے حالات آر ایس ایس، بجرنگ دل اور سنگھ پریوار نے اتنی تیزی سے بدل دیے کہ مسلمان مجبور ہو گئے اپنی قیادت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ 60 سالوں تک مسلمانوں نے ہندوستان میں کانگریس کو دور اقتدار پہ رکھا، اور 60 سالوں کے بعد جب بابری مسجد کی شہادت ہوتی ہے تو بابری مسجد کی ٹوٹی ہوئی میناروں سے ایک 4 فٹ کا انسان کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں تمہارا رہنما ہوں، میں تمہارا قائد ہوں، میں تمہارے حق حقوق کا تحفظ کروں گا، میں تمہارے بچوں کے روشن مستقبل کی لڑائی لڑوں گا۔ مسلمان ہے دھونی قوم جو یہ نہیں دیکھتی کہ ملا ملائم سنگھ یادو جس کو لقب دیتی ہے اس
उसकी धोती के नीचे कौन से रंग की चड्डी पहने हुए है। मुसलमान आंख बंद करके मुलायम सिंह यादव के पीछे चल देता है और ये नहीं सोचता कि ये मुलायम सिंह यादव हमको किस पैराए पे ले जा करके छोड़ेगा। 30 सालों तक मुसलमानों ने एक मुश्त रखा पादेव की तरीके से मुलायम सिंह यादव को वोट दी। 4 मरतबे दौरे इख्तियार में मुलायम सिंह यादव आया, 3 मरतबे मुलायम सिंह यादव, 1 मरतबे उसका नाहल बेटा अखिलेश यादव दौरे इख्तियार में रहा। मुलायम सिंह के दौरे इख्तियार में मुजफ्फरनगर दंगा होता है। मुजफ्फरनगर दंगे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया जाता है। सैकड़ों मुसलमान औरतों के साथ असमत रेजी की जाती है। सैकड़ों मुसलमान नौजवान बुजुर्गों और बच्चों का कत्लेआम किया जाता है। और यही अखिलेश यादव सहभाई में बैठ करके नंगा नाच देख रहा होता है, इसके कानों पे जूं नहीं रहती। मैं आज ये क्यों आपसे बता रहा हूँ? क्योंकि वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। मुसलमानों, एक चीज याद रखना, जिस तरीके से हमारे साथ पार्शलिटी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, अगर हम अब भी नहीं सुधरे, अगर हम अब भी नहीं सचेत हुए, अगर हम अब भी नहीं जगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में हमको मिटा देने की पूरी साजिशें रची जा रही हैं। आप क्या बीजेपी को कमजोर समझते हैं? आज आ रहे थे बजरंग दल, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे हर महकमे में बैठे हुए हो, वो चाहे पुलिस महकमा हो जाए, वो चाहे अदलिया का महकमा हो जाए, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो जाए, वो चाहे जो महकमा हो जाए, हर जगह आरएसएस और बजरंग दल संघ परिवार के लोग बैठे हुए हैं। बताओ क्या अदलिया से आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है? बताओ क्या पुलिस से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? बताओ क्या मीडिया पार्शलिटी नहीं दिखाती मुसलमानों के साथ? एक मुसलमान पकड़ा जाता है तो यही मीडिया के लोग उसको डिबेट में आतंकवादी साबित कर देते हैं, और यही जब हिंदू आतंकवाद से बड़ा क्राइम करता है तो यही मीडिया के लोग उसके साथ पार्शलिटी करते हैं और ये साबित करते हैं कि अभी कोई प्रूफ नहीं है, अभी कोई सबूत नहीं है, इसको हम कैसे आतंकवादी कहते हैं। मुसलमानों, अभी भी वक्त है। क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी आपने नहीं देखी? क्या जाकिर नाइक के साथ जो हुआ उसको आप महसूस नहीं करते? क्या तबरेज अंसारी के साथ झारखंड में हुआ उसको महसूस नहीं करते? क्या नजीब की गुमशुदगी आप भूल गए? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत आप भूल गए? कितने वाकयात मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे गिनाऊं, कितने वाकयात, पूरा टाइम चला जाएगा लेकिन मुसलमानों की ऊपर हुए जुल्म की दास्तान खत्म नहीं होगी। जब कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टांगा यूनिट में अपनी टीम को साथ लेकर के एहतजाज करने वाला आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त इरफान पठान खड़ा था। और मैं किसी के पास से नहीं डरता, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और जो कौमें अल्लाह से डरती हैं वो ना प्रशासन से डरती है, ना शासन से डरती है, ना किसी के बाप से डरती है। इस चीज को याद रख लीजिए, इस चीज को याद रख लीजिए और पता करिए, पूछिए कुरान से कि हमको दुनिया में क्यों अल्लाह ने भेजा। तमाम कौमें थी, यहूद थी, नसारा थी, सलीबी थी, अल्लाह ने किसी और से काम क्यों नहीं लिया? तो कुरान फरमाता है कुन तो खैरा उम्मतों नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको पूरी दुनिया के रफा नसानी के लिए भेजा गया है। आज क्या कर रहा है मुसलमान? क्या कर रहा है मुसलमान? आज हमारा एक कायद खड़ा हुआ तो हमारी ही कौम के लोग उसको वोट कटुआ बोलते हैं, हमारी ही कौम के कम्युनिटी के लोग उसको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। अरे पता है मुसलमानों, किसी पे बगैर जाने बूझे समझे बोहतान लगाने की सजा अल्लाह क्या देगा? क्या देगा अल्लाह सजा? जब तक कि उस इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगे अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। खड़े होकर के पेशाब करने वाले मुसलमानों के रहनुमा बने बैठे हुए हैं। बासरा, बासरूर, बासलाहियत दिखाई देने वाला वोट कटुआ बीजेपी का एजेंट। अरे मुसलमानों, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो अगर हम नहीं संभले तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। जाकिर नाइक का नंबर आया, इस फिरके के लोग खामोश थे,
मौलाना कलीम सिद्दीकी का नंबर आया तो उस फिरके के लोग खामोश थे। चलते घर को देखने वालों, फूस का चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आप आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस चीज को याद रखिए, एक एक का नंबर आएगा, खड़े होइए, जुल्म के खिलाफ लड़िए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, जुल्म के खिलाफ लड़िए, क्योंकि ईमान के तीन ही तकाजे हैं, तीन ही तकाजे हैं। पहला कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास इस्तेताअत है, आपके पास पावर है, तो जुल्म को ताकत से रोक दीजिए, जुल्म को ताकत से रोक दीजिए। और अगर ये नहीं है तो दूसरे दर्जे का ईमान सुनिए, दूसरे दर्जे का ईमान कि आप लड़ नहीं सकते, जालिम के खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो जालिम के खिलाफ बोलना सीखिए, बोलना सीखिए। ये दूसरे दर्जे का ईमान है। और सबसे अदना दर्जे का ईमान मुसलमानों, एक चीज याद रख लेना, सबसे आखिरी दर्जे में और जाना अपने कल्ब पे हाथ रख करके महसूस करना क्या हम इस आखिरी दर्जे में हैं कि नहीं है। महसूस करना जा करके कि अगर आप ना लड़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो कम से कम जालिम की ताईद मत कर दीजिएगा, जालिम की तरफ मत खड़े होइएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करता है? अखिलेश यादव जालिम की ताईद करता है, मायावती जिसके कार्यकाल में मुस्लिम नौजवानों को जेलों में ठूसा गया, झूठे आतंकवाद के इल्जाम में ठूसा गया। आज हम जालिमों को वोट देते हैं, हमारे मौलाना मुल्ला वोट देते हैं, और जब जुल्म होता है तो मस्जिद में जाते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह मदद कर दे, अल्लाह मदद कर दे। अरे अल्लाह से रियाकारी, तुम्ही ने जालिमों को मजबूत किया, तुम्ही ने जालिमों के कंधों में कुव्वत बख्शी, और अब तुम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हो। अब अल्लाह से गिड़गिड़ाओगे, अब अल्लाह से मदद मांगोगे, ताकत जालिम को बख्शोगे, मदद अल्लाह से मांगोगे। अल्लाह भी क्या सोचता होगा, क्या सोचता होगा कि हमने एक कौम उतारी जो दूसरों की नफा रसानी के लिए थी, आज वो जालिमों की तारीफ कर रही है, जालिमों के साथ खड़ी है, जालिमों को ताकत बख्श रही है। और जब जुल्म का शिकार होती है ना, तो हमारे घर मस्जिद में आती है और अल्लाह से दुआ करती है। एक चीज याद रख लेना, अगर इरफान पठान मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर है, 2015 से लेकर के आज तक कायम है, तो मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है, मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। मेरी नीयत क्या है वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को अमाल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस आ गई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार नीयत पे है। आप 1 लाख का जानवर ज़बह कर दीजिए, क्या अल्लाह को घोड़ा पावा सीधा कलेजी चाहिए? क्या चाहिए अल्लाह को? क्या चाहिए? अल्लाह को आपकी नीयत देखना है कि रज़ाए इलाही के लिए ज़बह किया है कि पब्लिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़बह किया है। क्या चाहिए? हम जो कर रहे हैं, सलमान मलिक जो कर रहे हैं, डॉक्टर मलियान साहब जो कर रहे हैं, इसरार भाई जो कर रहे हैं, इसमें हमारी नीयत क्या है ये हमारा अल्लाह जानता है। हमको समझना पड़ेगा, हमको लोगों तक एक एक घर तक पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। और एक चीज मुसलमानों याद रखो, इस्लाम की कोई भी तारीख उठा लो, कभी भी हक बातिल से ज्यादा तादाद में नहीं रहा। कभी रहा जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, और अपनी दूर क्यों जाते हो? आप पड़ोसी मुल्क में एक जंग हुई, देखो देखो पूरा बातिल निजाम एक तरफ और चंद फटे चीतड़े वाले चंद मुजाहिदीन एक तरफ। अल्लाह ने किसको गलबा दिया? किसको गलबा दिया? 20 सालों तक जंग चली, अल्लाह ने अल्लाह वालों को गलबा दे दिया, अल्लाह ने अल्लाह वालों को गलबा दे दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी बातों में सच्चाई नहीं है? नहीं है सच्चाई? बताओ हाथ खड़ा करके, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? तो एक एक हाथ को कसम है, खड़ा करके बताओ
इरफान पठान उतरौला की जमीन पे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बताओ हाथ खड़ा करके। आप इसमें भी गुरेज करते हो कि कहीं हमारे पुराने आका जो समाजवादी में बैठे कहीं फोटो न पहुंच जाए उनके पास। यही डर है ना कि तुम्हारे पुराने आकाओं के पास फोटो न पहुंच जाए, जो जालिम अखिलेश यादव की तारीफ करता है, जो जालिम बहन कुमारी मायावती की तारीफ होती है, जिसके दौरे इक़्तिदार में मुसलमान नौजवानों के ऊपर जुल्म किया गया। बात बहुत सारी है, वक्त आएगा मैं अपने बड़े भाई के लिए उतरौला विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला, जबकि मुझे खुद चुनाव लड़ना है, लेकिन अपने बड़े भाई के ऊपर सारी चीजें कुर्बान, मैं इनके लिए जरूर आऊंगा और एक एक दरवाजे तक जाऊंगा और अल्लाह का वास्ता दूंगा कि मुसलमानों अपनी शिनाख्त को बचाओ। हिंदुस्तान में ये तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी शिनाख्त के लिए है, तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। अगर इसमें पिछड़ गए तो मिट जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ हम फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं। वजअल्ना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते हो ना, वजअल्ना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते हो ना। अल्लामा इकबाल साहब क्या कहते हैं? तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, और नशे बन को कोई मतलब नहीं पैमाने से। हाय फितने तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को शर्म खाने से। जब अल्लाह को काबे की हिफाजत करनी होगी तो इन्हीं हुनूक, इन्हीं सलीब, इन्हीं जो है नसरानियों में से अल्लाह ईमान वालों को पैदा कर देगा। ये हमारा ईमान है। क्या तातारी फितना नहीं देगा? सल्तनत अब्बासिया में एक दिन में तातारियों ने 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, एक दिन में तारीख लिखती है। और उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं तातारियों में से अल्लाह ने इस्लाम पैदा कर दिया, कलमा को पैदा कर दिया। और आज जो सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, ये उन्हीं तातारियों में से कायम की गई। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद बातों के साथ, एक शेर के साथ, हो सकता है कि मेरा आखिरी शेर आप लोगों के जज्बात को ढोल करके रख दे, क्योंकि बहुत सारी वक्त की किल्लत होने के बाद मैं आपके दरमियान आया हूँ। पैदल न वजीर न सुल्तान लड़ा था, पैदल न वजीर न सुल्तान लड़ा था, झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था। और 313 में लाखों पे फतेह पाली, क्योंकि बद्र में इंसान नहीं ईमान लड़ा था। अस्सलाम वालेकुम।